ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਊਪਜੈ, ਭੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਭਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ 4 ਰਤੀਆਂ। 4 ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ 4 ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ 4 ਰਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 4 ਰਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਉਜਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੀ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਲਮੀਕ ਦੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਗਵਾਰ ਅਰ ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾਰਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਰੀ ਔਰਤ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰ ਇੱਕ ਮਾਦਾ। ਇੱਕ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾਈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਦਾ ਇਹ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਚੰਨ ਤੱਕ ਧੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਔਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖਿਵੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜੇ ਮਰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
कि एक मर्द जिन्नियां मर्जी चाहे तो शादियां कर सकता है, वो प्रवान है, पर औरत एक तो वध शादी नहीं कर सकती। ये उल्ट हिंदू मत ये गल कहती है, ब्राह्मण ये 4 वर्ण बने ने ना, ब्राह्मण है, खत्तरी है, वैश्य ते शूद्र, ये इदा इन्हां दी डिटेल है। ब्राह्मण चाहे जिन्नियां मर्जी शादियां कर सकता है। ब्राह्मण एक खत्तरी दी बच्ची नाल भी शादी कर सकता है, शूद्र दी ते वैश्य दी बच्ची नाल भी शादी कर सकता है। उस तो बाद खत्तरी ब्राह्मण की धी नहीं विआह सकता, वो शूद्र ते वैश्य की धी विआह सकता है। वैश्य जिहड़ा है वो ब्राह्मण ते खत्तरी की धी नहीं विआह सकता, वो शूद्र की ते वैश्य की धी विआह सकता है। शूद्र ना ब्राह्मण की धी विआह सकता है, ना खत्तरी दी, ना वैश्य की, केवल तो केवल शूद्र अपनी ही कुल की, अपनी ही जात की शूद्र की धी के नाल ही विआह कर सकता है। ये उल्ट औरत नूं कोई अधिकार नहीं सी कि वो एक तो वध विआह कर सके, केवल तो केवल इक्को विआह करन दी उन्होंने इजाजत दी जाती है। ये सारी मनौत इसे पिछे काम करती है कि औरत नूं दब के रखा जाता है। तुसीं देखो अज तो चलो माहौल बदल गया, अज साड़ियां धीआं पढ़ गई, बड़ी चंगी गल है। पहलां की सी, बच्ची जो जमदी है बाप के अधीन है, थोड़ी जी वड्डी होई भरावां दे अधीन है, जिस दिन विआही जाती है पति के अधीन है, जिस दिन बच्चे जवान हो जाते हैं वो फिर बच्चों के अधीन हो जाती है। सारी उम्र विचारी जिहड़ी औरत है वो इस तरीके दे नाल गुलामी दे विच ही बतीत करती है। अज मैं बेनती करा, चलो ठीक है मैं स्टेज पर बोल के चलिया जावांगा कि औरत नूं बराबर का सन्मान दो, पर अज दुखांत इस गल का जो गुरमुखो, अज औरत ही औरत की वैरी बनी पई है। पिछले 20 सालों के तुसीं अंकड़े कढ़ के वेख लो, पुराने समय दे विच किन्नियां भरूण हत्या होईयां। कि बच्ची की भरूण हत्या होंदी सी ना, मुंडे की तो कभी भरूण हत्या होंदी नहीं। बच्ची की जो पता लग गया, टेस्ट हो गया कि बेटी जन्म लै रही, वो भरूण हत्या हो रही है। जन्म देने वाली भी माँ है, तो उन जन्म होने वाली भी एक बच्ची, वो भी फीमेल, वो भी फीमेल है, तो वो सस भी फीमेल है। सस कहती है कि सानू ये पत्थर नहीं चाहिए, ये सफाई करा दी जाए। याद रखियो, मैनू माफ़ करना, ठीक है असी ये गल कह देने कि मर्द ने औरतों को बराबर का सन्मान नहीं दिता, पर एक सच्चाई जे औरत भी औरत को बराबर का सन्मान नहीं देंदी। एक सस घर दे विच बैठी हुई ये रोब पाउंदी है नौं दे उत्ते कि तू जिहड़ी वो पराए घर दे विच आई है, ये तेरा अपना घर नहीं। तो मैं सोचदा ना सस का किहड़ा अपना है, सस भी तो कदी इत्थों दी नौं सी ना। एक गल गुरमुखो याद रखियो, कई बारी इदां हुंदा है, मैं पिछले समय ना एक भैन नूं फोन किया, मैं उन्होंने पूछा कित्थे आ, कहंदी मैं अपने घरें हाँ। मेरा माइंड जिहड़ा वो दोवें पासे हो गया, किहड़े घर च आ, इत्थे के उत्थे, सौहरे के पेके। कहन लगी नहीं मैं पेके हैं, चलो पेके आई। मैं उदों एक गल मेरी मन दे विच आई कि औरत वास्ते कदी कोई पक्का घर नहीं। तुसीं मुंडे नूं फोन करो, मर्द नूं फोन करो ना, वो आंदा मैं अपने घरें आ। कभी किसी ने पूछा भी किहड़े घर च आ, सौहरे आ कि पेके आ, उहदा इक्को ही घर है। पर अज दुखांत इस गल का औरत का एक घर नहीं हैगा। ये कुछ कड़वियां सच्चाइयां ने जिहड़ा साडा समाज प्रवान नहीं करता। धी पेके घर च हुंदी है तो माँ बाप कह दिंदा है कि धीए तू बगाना धन एक दिन विआह दित्ती जावेगी, सौहरे घर च चली जाती है, फिर भी कहती ये बगानी धी है। मैनूं दसो जे दोवां ने बगानी कह दिता, इनू अपनावेगा कौन? ये हिंदुस्तान की त्रासदी रही है। अज तक औरत नूं सन्मान नहीं दिता गया, अज तक औरत नूं भंडिया गया है। एक गल याद रखियो, इत्थे औरत नूं ताड़िया जांदा सी। इत्थे अज भी मुसलमानां दीयां औरतां बुरके दे विच ने, अज साडीआं धीआं साडे बराबर बैठदियां ने, काम कार करदियां ने, हर थां ते आउंदियां जांदियां ने। ये गुरु नानक साहब की कृपा है, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा। जे तुहाडे सिरां ते चुन्नियां ने ना, अपनी मर्जी दे नाल दुपट्टे लैंदे जे, ये गुरु नानक साहब की कृपा है। जे गुरु नानक साहब ये धर्म ना चलाउंदे ते साडे सारियां दे मूहां दे उत्ते, बीबियां दे मूहां दे उत्ते बुरके हुंदे, घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी वाला गम हुंदा। क्योंकि जो हिंदुस्तान जिहड़े हिंदू प्रधान सी ना, इन्हां को अपनियां जनानियां ते सांभियां कोई नहीं गईयां। पिछले समय च बड़ियां वीडियो वायरल होईयां जी, 12 वजे की गल। मैं एक गल याद रखियो, जिहड़े हिंदुस्तान दीयां बहु बेटियां सन, गजनी दे बाजारां दे विच टके टके दीयां वेचियां जांदियां सन। इत्थों का ये इतिहास है हिंदुस्तान का। जे अज औरत बराबरता का अधिकार रखती है, इस जिहड़ा सेहरा सारे का सारा गुरु कलगीधर पातशाह नूं जांदा। एक विद्वान आ बच्चों नूं बिठा लो, ये एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल लिखी है, कह लगा ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ना खालसा पंथ साजदे ना,
ਤੇ याद रखियो मर्दां दी सुन्नत हुंदी ते औरत भी बुरके दे विच हुंदी। मेरे सतगुरां ने इस मनावत नूं तोड़िया। मैं गल नूं नेड़े रखां। जिहड़े लोग ये गल कहिंदे सन, ये अज तक ये तर्क किया गया जी, अज इस शब्द दे विच सारे तर्कां दा खुलासा होना है। अज तक ये कहा गया जी औरत कभी भी बहुता धार्मिक आगू के रूप दे विच नहीं आई। तुसी जदों भी सरीरक जामा देखते जे ना, जिन्ने भी धार्मिक रहबर ने तकरीबन सारे मर्द प्रधान ने। उस तो बाद किसी औरत ने धार्मिक ग्रंथ की रचना नहीं की। उस तो अगे तुसी चलते जे, औरत जिहड़ी है वो संतां भगतां दे विच नहीं गिनी जाती। इस तो अगे जाते जे औरत नूं गुरद्वारा शब्द भी मैं वरत ही देवां, अज मंदिरां दे विच भी औरत नूं जान नहीं दिता। मैं पिछले समय एक शब्द वरतना से संकोच कर गया, अज मैं स्पष्ट कह देवां, अज कई थावां दे उत्ते गुरु घर दे विच औरत नूं कीर्तन भी नहीं कीता जाण दिंदा। हरमंदर साहिब औरत कीर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि साडी सोच उत्थे ब्राह्मणवादी सोच जुड़ी हुई है। अज भी साड़ियाँ कुछ संप्रदावां ने जिहड़ियां औरत नूं पंज प्यारियां दी सेवा च नहीं जी लगन दिंदियां। खास करके टकसाल दे विच तुसीं वेखो, कदी भी औरत जिहड़ी है बीबी है वो पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सेवा च नहीं लगदी। हाँ, जिहड़े अज मिशनरी चले ने ये पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सेवा दे विच बीबी नूं लै लैंदे ने, क्योंकि गुरबाणी ने आग्या दित्ती हुई है सानूं। पर अज भी किते ना किते साडी वो मनौत मगर काम करदी पई है। मैं आना एक बारी तो इन्ना क बेड़ा गर्क करके रखता जी साडे बाबियां ने। एक बारी ना पिछे जे रौला पिया सी एक बाबियां दा, वो कहिंदे भी असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं इशनान कराउणा हुंदा है। तो वो चलो लैमीनेट की भी गल हुई, पर रौला पै गया, काफ़ी पुरानी गल है, वो ये गल थप्पी रह गई। हुण मैं कथा तो बाद आपां सुख आसन करना है। तुसीं सारे बैठे जे, ये इनू सुहिरदा दे नाल सुनियो। कुछ इहो जे भी डेरे सन जिहड़े ये गल कहिंदे सन जी सुख आसन करना है, महाराज दीआं पलकां बदलनियां ते बीबियां परे हो जाओ। मैं ना किहो जी सोच है साडी। गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप जिहड़ा है तो बस्तर बदले जाने तो बीबियां परे हो जाओ, क्योंकि अज भी साडी मनौत उत्थे ही लगी हुई है कि जिवें मूर्ति के उत्तों कपड़ा चुक्या जांदा सी, मर्द की मूर्ति सी, औरत की मूर्ति है। शायद गुरु ग्रंथ साहिब वेदा गुरु तो शब्द प्रकाश है, ये तो इत्थे औरत ते मर्द नूं बिल्कुल बराबरता का अधिकार दिता गया। पर अज भी साडे कोल कुछ इहो जिहियां संप्रदावां ने सिख धर्म दे विच जिहड़ियां औरत नूं पिछे पाउंदियां ने। इहनूं असीं मन्नना पवेगा, सच्ची गल है। ठीक है, कुछ कुदरती दातां ने परमात्मा ने दित्तियां होईयां औरत नूं, पर एक गल याद रखियो, मैं उदों शब्द आया सी जिउं जोरू सिरनावनी उस दिन अर्ज की सी, जे औरत दे अंदर ये दात ना टकाई होवे ते मनुखा जन्म की पैदाइश नहीं हो सकती। सो मेरे कहण दा भाव, मैं गल नूं नेड़े रखां, जिहड़े लोग कहिंदे सन औरत माड़ी है, हर पक्षों माड़ी है, गुरु नानक साहब ने वो मनौत नूं तोड़दे होया इस श्लोक की रचना की। सतगुरु जी अज बख्शिश करते हैं। महला पहला, ये 19वीं पौड़ी का दूसरा श्लोक है जी। सतगुरु शब्द वरतते हैं, कह लगे भंड जम्मी है, भंड निमी है, भंड मंगन विआह। भंड का अर्थ दो तीन कीते जाते हैं। एक तो चलो जिहड़े हासा ठट्ठा करते हैं ਵਿਆਹਾਂ शादियां दे उत्ते, उन्हां नूं भंड भी कहा जाता है। एक भंड का अर्थ पात्र भी हुंदा है, भांडा। भंड का अर्थ इस्तरी भी आया गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। भांडे के रूप दे विच आपां अखीरली पौड़ी पढ़ांगे, आपे भांडे साजन, वो सरीरक रूप भांडा भी आया। तो भाई कान सिंह नाभा जी हुणां ने ना महान कोश दे विच इहदे अर्थ बड़े सोहणे कीते। वो कहिंदे जी भंड का अर्थ है पात्र, पात्र का अखरी अर्थ है भांडा जिहदे विच कोई चीज़ टकाई जाती है। कहिंदे औरत वो पवित्र भांडा है जिहदे विच संसार की पैदाइश टकाई जाती है, क्योंकि औरत तो बिना फीमेल तो बिना पैदाइश नहीं। तुसीं मनुखा जन्म छड्डो जी, ये 84 लाख जूनां ने, 84 लाख जूनां दे विच जदों भी पैदाइश हुंदी है वो हर थां दे उत्ते मेल ते फीमेल काम पे करदे ने। हर थां दे उत्ते नर मादा, पशुआं दे विच नहीं, पंछियां दे विच नहीं, बनस्पति दे विच नहीं, किहदे विच ये चीज़ां नहीं हैगियां। हर थां ते परमात्मा ने एक जरिया बनाया होया है संसार की उत्पत्ति का। सो मैं सतगुरु जी इत्थे बख्शिश करते हैं। भंड का अर्थ किया जी पात्र, पात्र का अर्थ किया है औरत, वो इस्तरी सत्कारयोग वो हिरदा जिहदे दे विच इस्तरी दे उदर दे विच मर्द जां औरत का जन्म हुंदा, उहनूं पात्र कहा जाता है। उहनूं इत्थे भंड शब्द गुरु नानक साहब ने वरत्या। ये भंड शब्द बार बार रिपीट होना है, तो भंड का अर्थ इस्तरी करना है। आप एको वारी कर लीए फिर सौखा हो जाएगा। सतगुरु कह लगे भंड जम्मी है, कहिंदे भलिया इसदे द्वारा ही जिहड़ी है संसार दे विच पैदाइश की जाती है। जे किसी घर धी पैदा होंदी है, पुत्त पैदा होंदा है,
औरत ताई पैदा होंदा है। एक होर है जी साडे च, वो ना मेल ना फीमेल, जिन्हों आप हिजड़े कह दें ना, खुसरा शब्द भी वरत्या जाता है, ਉਹਦੀ पैदाइश भी औरत के राही है। ये सारा कुछ परमात्मा की सृष्टि का सिस्टम इदां दा ना, मैं बहुत संकोच में शब्द वरतां। सतगुरु कहते जिहड़ी जन्म दिता जाता है वो जननी केवल तो केवल एक औरत है, भंड जम्मी है। अगे शब्द है भंड निम्मी है। निम्मीए का अर्थ होंदा निमना, ये भाव अर्थ करांगे टिकना। कह लगे औरत के उदर दे विच ही बच्चे का निवास हुंदा है, भाव औरत के पेट दे विच ही बच्चे का शरीर बनता है, किते बाहर ये बाहर कला नहीं वापरेगी। ये जिहड़ा परमात्मा ने सिस्टम बनाया है ना, ये उस सिस्टम के मुताबक माँ के उदर दे विच ही बच्चे का शरीर तैयार होंदा है। भंड जम्मी है, भंड निम्मी है। हुण जो पैदा हो गया धी या पुत पैदा है, मान लो पुत पैदा हो गया, सानूं पुत सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारे ने। तो मैं पिछले समय 'ਚ एक गल कही सी, अज बड़े बाबे जे ਜਿਹੜੇ पुत्रां ਦੀਆਂ अरदासां करते हैं, पर शायद इहो जिहा कोई बाबा होवे ਜਿਹੜਾ धी ਦੀ अरदास भी करता होवे। ये साडी समाज की सोच है ना। किसी बाबे को चले जाओ, कद लिखे ऐसी जी पुत की दात लैनी है। बहुत घट लोग इहो ਜਿਹੇ ने कभी अरदास कराउण के पातशाह सानूं धी की दात भी बख्शो। पर मैं तुहानूं नाल इतिहास साझा करा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के 5 साहिबजादे ने, सब तो वड्डे ने बाबा गुरदित्ता जी। जिस वेले बाबा गुरदित्ता जी का प्रकाश होया, माता गंगा जी आए। हुण माँ ने कहन लगे पुत्र गुरु नानक साहब कृपा करन ये जोड़ी रल जाए। दादियां नूं हुंदा है कि 2 पोतरे होण। उत्थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कहा, कह लगे माँ जोड़ी रलेगी पर जे एक धी होवेगी। तुसीं गुरु नानक साहब के चरणों के विच अरदास करो, रब मैनूं धी की दात बख्शे, भैन भरावां की जोड़ी रल जाएगी। तो इतिहास गवाह जी बाबा गुरदित्ता जी तो बाद जे संतान का जन्म हुंदा है, वो बेटी का जन्म हुंदा है, तो उन्हां दा नाम सत्कारयोग इतिहास दे विच बीबी वीरो करके लिखिया है। ये गुरु घर दीयां रहमतां ने। औरत दी भी मंग गुरु घरां दे विच कीती जांदी रही है। इत्थे सतगुरु कह लगे भंड जम्मी है, भंड निम्मी है। एक औरत द्वारा ही पैदाइश हो रही है, औरत के उदर दे विच ही जिहड़ा संसार की उत्पत्ति का सिलसिला चलता है। भंड मंगण, हुण तुसीं पुत्तर दा मंगना करना है, ब्याह करना, किहदे नाल करोगे? मेल फीमेल दा ही ब्याह होएगा ना। सतगुरु कहंदे एक पासे तुसीं औरत नूं माड़ा कहिंदे जे, एक पासे कहिंदे जे ये औरत चंगी नहीं, ये तारनी है। एक पासे पुੱਤ तुहाडा जवान हुंदा ते कहिंदे जे इहदे बराबर दी कोई कुड़ी लभ रही है, इहदे बाद इहदा रिश्ता कर दईए। सतगुरु कहंदे दोगली जिंदगी क्यों जींदे जे? भंड मंगण, ये बच्चे का मंगना भी जिहड़ा कीता जांदा, वो भंड का अर्थ औरत नाल कीता जांदा। विआह इत्थे औंकड़ लगा है पैर दे विच, इहदे बारे मैं थोड़ी जी बेनती कर देवां। ये औंकड़ है, होड़ा नहीं बनाउणा। जे इहदा औंकड़ ला के उचारण करना है, साड़ियाँ संप्रदा जिहड़ियां ने वो इहदा औंकड़ दे नाल उचारण करदियां ने। व्याकरण वाले जिहड़े वीर ने वो औंकड़ तो बिना उचारण करते हैं। ये एक वचन है, तो जे औंकड़ ला के उचारण करोगे इहदा उचारण होएगा जी विआह। हाहे नूं औंकड़ है, विआहो नहीं बनाउणा, हाहे दा होड़ा नहीं बनना। तो जे तुसीं औंकड़ तो बिना भी उचारण कर दोगे तां भी कोई गल नहीं। विआह, विआह इहदा अर्थ है आनंद कारज शादी। सो इहदा उचारण जे औंकड़ लाउणा है तो औंकड़ दी ही आवाज़ आवे, इहदा ख्याल रखना है। सतगुरु कह लगे भंड मंगण, भंड दे नाल औरत दे नाल ही बच्ची दे नाल ही मंगना हुंदा है। तो विआह कहंदे ओहदे नाल ही आनंद कारज हुंदा है, ओहदे नाल ही औरत दा जिहड़ा है मर्द दे नाल ते मर्द दा औरत दे नाल विआह हुंदा है। अगे सतगुरु कह लगे भंडो होवै दोस्ती। इत्थे अर्थ ये नहीं करना कि औरत दे नाल दोस्ती, इहदा अर्थ करांगे औरत दे द्वारा दोस्ती है। हुण बहुत साडे जिन्ने भी समाजिक रिश्ते ने ये औरत तो ही चलते हैं। मान लो जिहदी पैदाइश हुई है, माँ तो ही पैदाइश हुई है ना। जे माँ ही ना हुंदी तो साडा जन्म कित्थों हुंदा? माँ ने जन्म दिता तो 2 रिश्ते बन गए, माँ बाप, फिर भैन भरा के रिश्ते बन गए। जिस दिन ब्याया गया फिर पति पत्नी हो गया, फिर चाची चाचा हो गया, ताई ताया हो गया, भूआ फुफ्फड़ हो गया। ये किन्ने रिश्ते ने? ये सारे औरत के नाल ही रिश्ते गांह चलते हैं। कल्ले दे कित्थों रिश्ते तोड़ लोगे तुसीं? बहुत रिश्ते साडे जिहड़े ने ये औरत के द्वारा ही समाज दे विच ने। ये सतगुरु कहन लगे भंडो होवै दोस्ती, भंड दे द्वारा ही औरत के द्वारा ही समाज दे विच मिल वर्तन वधदा है। औरत के द्वारा ही संसार दे विच जिहड़ा है वो एक दूजे दे नाल दोस्ती कीती जाती है। तो सच्ची गल ये है, जिस घर दे विच कोई औरत ना होवे तो लोग छेती उस घर च सीधे मूँह नहीं जाते। पता कि ना किसी ने पानी धानी पुछना है, ना घर च किसी ने चाह बनाने वाली कोई चज दी बैठी होनी है। औरत घर का श्रृंगार है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बहुत सत्कार दिता।
सतगुਰਾਂ ਨੂੰ जिस ਵੇਲੇ सवाल किया ना कि तुसी जी फकीर भी जे ते बच्चे भी ने औरत भी है तुहाडी, सतगुਰਾਂ उत्थे क्या सी औरत ईमान कहन लगे जी औरत ईमान, ईमान का अर्थ हुंदा जी धर्म। कहंदे मनुख दे नाल औरत होवे भाव वो विआहया होवे ओदी धर्म पत्नी होवे, इहदा ये संकेत है कि ये मनुख अपना जिहड़ा है जत सत वाला उच्चे सुच्चे करैक्टर वाला ये धर्मी है। ये साडी जिंदगी दे गृहस्थी जिहड़ा मार्ग है ना ये धर्म की निशानी है। तो जिन्ने लोग ये गल कहिंदे सन कि औरत तो दूर जाना चाहिए, औरत दे मत्थे नहीं लगना, जिहड़े पहाड़ां दे विच लुक के जाके बैठ गए तो गुरु नानक साहब महाराज जी के घर ने उन्होंने प्रवान नहीं किया। सतगुरु कहते एक पासे औरत नूं भंडदे जे, दूजे पासे फिर रोटी पानी औरत दे कोल ही मंगन जांदे जे। मान लो मैं इत्थे बह के कथा कर रहा, मैं इत्थे औरत नूं भंडी जावां घर जावांगा रात नूं, रोटी कौन लाएगा मेरे वास्ते? मेरी माँ बैठी है ना घर च, वो भी तो औरत ही है, माँ रोटी ला के दे रही है, मैं जावांगा माँ पानी देवेगी रोटी लियावेगी मेरे लीड़े कपड़े धोवेगी, प्रेस सारे काम माँ ने करने ने। इस करके सतगुरु कह लगे भलिया भंडो होवे दोस्ती तेरे जिन्ना भी संसार दे नाल दोस्ती मित्रते जिन्ने भी रिश्ते जुड़ते हैं औरत द्वारा ही जुड़ते हैं। भंडो चलै राहो, यदा भी सेम उच्चारण होगा जिमें विआहो राहो, राहो का अर्थ करांगे संसार की उत्पत्ति का राह। औरत तो ही संसार की उत्पत्ति का जिहड़ा सिलसिला चलता है, राह चलता है, औरत तो बिना कभी उत्पत्ति नहीं हुंदी। अगे सतगुरु कह लगे भंड मुआ, यदा पाठ मूआ नहीं करना, मूआ क्योंकि दुलैंकड़ नहीं औंकड़ लगा होया। भंड मुआ अर्थ मूआ ही करांगे भाव मर जावे। कहते जे औरत एक चढ़ाई कर जावे, मान लो बच्चे का आनंद कारज होया, समा पा के उहदी पत्नी चढ़ाई कर जावे, असी की करते हैं भंड भाली है। कहते यदी पत्नी चढ़ाई कर गई, ये वास्ते कोई होर बीबी लभ लो, होर बच्ची वेख के यदा रिश्ता कर दिओ। सतगुरु कहते एक पासे औरत नूं माड़ा कहिंदे जे इन्नी माड़ी है तो एक तो खैड़ा छुट्टिया जे मरी है तो फिर दूजी काहदे वास्ते लैके आ गए। कहते एक औरत चढ़ाई कर जाती है, तुसीं दूसरी दे नाल फिर विआह कर लेंदे, माड़ा क्यों कहिंदे जे इहनूं? पता है कि संसार की कार औरत तो बिना नहीं चलनी, मनुख नूं जिहड़ा वो सही लीह दे उत्ते औरत तो बिना कोई नहीं लिया सकता। सतगुरु कह लगे भंड मुआ पंड भाली है, कहते औरत चढ़ाई कर जाए उहदी जगह ते दूसरी औरत लभी जाती है। भंड होवे बंधान, कहते औरत के नाल ही जड़े ने वो रिश्ते चलते हैं, भैन भरा सारा कुछ बंधन जड़े ने वो औरत के द्वारा ही संसार दे विच गांह दी गांह रिश्तेदारियां भैन भरा चलदियां ने। सतगुरु कहते जे सारा कुछ औरत तो चलता पिया तो सो क्यों मंदा आखिए फिर उस औरत नूं माड़ा क्यों कहंदा पिया है? ये दोगली जिंदगी है ना। एक पासे औरत तो बिना साह कोई नहीं लेंदा, प्रशादा तेनों औरत तैयार करके देंदी है, हर थां ते तेरे जीवन दे विच औरत दा बराबरता दा रोल है, भावें माँ के रूप च है, भावें भैन के रूप दे विच है, भावें पत्नी के रूप दे विच है, ते भावें धी के रूप दे विच। ये चार प्रमुख साडे रिश्ते ने। सब तो पहला साडी माँ है, फिर भैन है, तीसरा रिश्ता साडा पत्नी का, ते चौथा रिश्ता औरत दे नाल साडा धी दा। ये चार प्रमुख ने, बाकी इहदे तो गांह रिश्ते निकलते हैं। सतगुरु कहंदे जे ये इन्नी माड़ी है तो फिर दोबारा कदे वास्ते औरत लभन तुर पैना है। भंड मुआ पंड भाली है, भंड होवै बंधान। इस करके सतगुरु कहते अजे भी मौका है सुधर जा, सो क्यों मंदा आखिए, क्यों माड़ी आखदा है औरत नूं, सो क्यों मंदा आखिए, जित जमै राह जान। याद रखी जे तू ये कहना कि औरत ने कभी भी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं रचिया, औरत ने कोई धार्मिक फील्ड दे विच जिहड़ी सी अगाह नहीं वधी, तो अमृत बाणी कहती है, कहन लगी कि धन जनेंदी माऊ आए सफल से। कह लगे जेड़े मनुख परमात्मा के नाम के नाल जुड़ जाते हैं, जिथे उन्होंने धन कहिंदे जे उन्होंने मगर उन्होंने माँ भी काम करती है। बाबा फरीद जी का जीवन आप पढ़ते हैं, बाबा फरीद साहब नूं कौन रब वाले पासे लाउण वाला है? माँ ही उहिओ गुण रखती सी। जे अज एक विग्यानी ये कहता है कि मैं विज्ञान द्वारा खोज की है, तो याद रखियो माँ ने विज्ञानी पैदा किया, विज्ञानी ने खोज की है, ये गल याद रखियो। जे एक संत कहता है मैं बंदगी की है, संत बनया है, माँ ने संत पहला पैदा करके दिता है, वो बाद दे विच संत बनता है। जे एक मनुख कहता मैं डॉक्टर मैं इंजीनियर, ये माँ ने पैदा किए हुए ने, उस तो बाद असी संसार दे विच गांह चलते हैं। सतगुरु कहते हरेक चीज़ का जिहड़ा मूल है वो औरत ही है, उन्होंने माड़ा नहीं कहना चाहिए। सो क्यों मंदा आखिए, कहते उन्होंने क्यों माड़ा आख्या जाता है? जित जमै राह जान। सतगुरु कह लगे भंडो ही भंड उपजै। इत्थे फिर उही अर्थ आउणगे, भंडो का अर्थ करांगे औरत, औरत तो ही औरत पैदा हो रही है।
एक धी नूं भी जन्म औरत देंदी है, एक पुत्र नूं जन्म भी औरत पई देंदी है। कहण लगे भंडो ही भंड उपजे, औरत तो द्वारा ही जिहड़े ने सारे संसार की पैदाइश हो रही है। भंडै बाजना कोई, कहिंदे मैनूं ये दसो संसार दे विच किहड़ा इहो जिहा माई दा लाल मां तो बिना पैदा होया जी? कोई अज तक होया? अमृत बाणी का फैसला है कि माँ ते पिता के सुमेल तो बिना संतान कदी नहीं हो सकती। इनू वासना वाल ना खड़े, ये सच्चाई है। माँ बिना तो माता पिता तो बिना संतान की पैदाइश नहीं हो सकती। सतगुरु कहते उन्होंने क्यों तुसी भंडदे जे। तो मैं समाप्ति वाले पासे आवां। गुरमुखो एक गल याद रखियो, जिहड़े लोग औरत नूं माड़ा कहिंदे ने ना, वो उन्हां लोकां ने की कीता, संसार नूं त्याग के गुफावां दे विच चले गए। पर गुरु नानक साहब ने बड़ी सोहनी गल कही, कहन लगे मनुख भोजन का त्याग कर सकता है। असीं कह दांगे मैं भोजन नहीं छकदा, मैं अशाखा जिहड़ा है वो प्रशादा पानी शाखाहारी भी नहीं है, ये मैं जिहड़ा फल पत्ते खा के गुजारा करदा हाँ। तुसीं भोजन का त्याग कर सकते जे, भुख का त्याग नहीं कर सकते। कभी किसी ने कहा मैनूं भुख नहीं लगती, भुख लगेगी, भोजन छको या ना छको तुहाडे ते है। तुसीं पानी का त्याग कर सकते जे, प्यास का त्याग नहीं कर सकते। अखां का त्याग कर सकते जे, रोशनी का त्याग नहीं कर सकते। याद रखियो तुसीं औरत का त्याग कर सकते जे, वासना का त्याग कभी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। मैं पिछले दिनों के भी एक जो कॉन्सैप्ट चलिया उदों भी अर्ज की सी, ये ईमान है जी औरत साडा, तो मनुख का जाति सती होने का जिहड़ा है वो सिरा जिहड़ा वो भी औरत नूं ही जांदा। औरत तो बिना मनुख जति सती भी नहीं हो सकता, इहदा करैक्टर भी नहीं जे औरत तो बिना बचदा। मैं बहुते खुलवें शब्द ना वरतां। याद रखियो जे वासना ते काबू पैंदा, ये भी औरत के द्वारा ही, अपनी पत्नी के द्वारा पैंदा। नहीं तो बड़े बड़े जोगियां दा इतिहास पढ़ के वेख लियो, ये ब्रह्मा वर्गे नहीं बख्शे जी, इंद्र वर्गे जिहड़े ने ये वासना दे विच अपने जीवन नूं कलंकित करके रह गए। इस करके सतगुरु गुरु नानक साहब के घर दे विच जदों धर्म की गल की, भाई गुरदास जी ने कहा सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। इस करके इत्थे गृहस्थ नूं प्रधानता दी है। सतगुरु इत्थे समझा रहे हैं, कह लगे भंडो ही भंड उपजै, भंडै बाजना कोई, पलिया भंड तो ही भंड उपजते हैं, भाव औरत तो ही औरत का जन्म पिया होंदा है। भंडै बाजना कोई, ना औरत तो बिना हो सकती है, ना मर्द औरत तो बिना हो सकता है। हाँ एक हस्ती है जिहड़ी औरत तो बिना है, वो कौन है? नानक भंडै बाहरा एको सच्चा सोए। सोए का अर्थ करांगे, वो कहते वो परमात्मा है जिहड़ा औरत के द्वारा जाया नहीं होया। परमात्मा जिहड़ा औरत के द्वारा पैदा नहीं किया होया। मैं इन्हां अखीरलियां 3 पंक्तियां दे अखरी अर्थ कर देना, भाव अर्थ आपां कल वाच लांगे। कह लगे नानक भंडै बाहरा एको सच्चा सोए। अगे सतगुरु कह लगे जित मुख सदा सा लाही है, भागां रत्ती चार। कईयां ने रत्ती का अर्थ लाल भी किया, चार का अर्थ वडियाई भी किया। कहते जिवें लाल चमकते हैं, इस तरीके दे नाल जिहड़ा मनुख परमात्मा का नाम जपदा है ना, वो रत्तियां दे वांग चमकदा है, तो वह मुखड़ा जिहड़ा सोहना बन जाता। कौन? जित मुख सदा सा लाइए, जिहड़ा मुखड़ा परमात्मा का नाम जपदा है वो हमेशा ही चमकदा है। अखीर ते सतगुरु कह लगे नानक ते मुख उजलै तित सच्चै दरबार। वो मनुख वो मुखड़े ही परमात्मा के दर ते उजले होणगे, जिहड़ा मुखड़ा परमात्मा का नाम जपदा। ये आपां कल नूं वेखांगे जी। वो इंसानी जामे दे विच औरत भी हो सकदी, वो मर्द भी हो सकदा है। बंदगी औरत भी कर सकती है, बंदगी जिहड़ा वो मर्द भी कर सकदा है। जिहड़ा बंदगी करेगा शर्त ये है वो ही परमात्मा के दर ते प्रवान होवेगा, चाहे औरत है चाहे मर्द है, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी ने बराबरता का अधिकार दिता है। ये अखीरलियां पंक्तियां तिन्नां दे मैं केवल अखरी अर्थ कीते ने, क्योंकि समय की समाप्ति है। भाव अर्थ आपां कल करके इन्हां दे ते फिर पौड़ी दी विचार करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान, होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। जित मुख सदा सा लाही है, भागां रत्ती चार। नानक ते मुख उजले तित सच्चै दरबार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की